अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, एक 28 साल जवान को पहले तो अगवा किया गया, फिर उसको बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन काट कर कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, मुबैना तौर पर उसी नौजवान की फुप्पो की बेटियां थी जिन्होंने उस नौजवान को कत्ल करवाया। क्या वजूहात थी कि उसको इतनी बेरहमी से मार दिया गया और फिर उसकी लाश को वीराने में फेंक दिया गया? आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है वो मुल्जिम जिसने एक नौजवान को पहले तो उसकी गर्दन काटी, फिर उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये था और इसके साथ और भी 2 औरतें थीं। बात करते हैं इससे मामला है क्या, क्यों इसने उस लड़के का कत्ल किया, क्या वजह थी? नाम क्या तुम्हारा? अली अब्बास। क्या करते हो? केबल का काम। केबल का काम। कहाँ के रहने वाले हो तुम? जोहर टाउन। जोहर टाउन। तो ये क्या मामला है जो बंदा कत्ल कर दिया तुम लोगों ने? किस वजह से तुमने कत्ल किया? किसके कहने पे किया? ये गुलाम, तुम्हारा उसके साथ मसला क्या था? मेरा उसके साथ कोई इशू नहीं था। वो ये गुलाम रसूल और मलिक तैयब मेरा दोस्त था। ये हम तीनों दोस्त थे। तो गुलाम रसूल की ये भतीजी लगती है जिसके साथ ज्यादती हुई है, और करने वाला उसका सक्का भांजा है। तो बैठे हुए थे तो इसने कहा कि यार भैया मेरी भतीजी के साथ वो उसने किया है, जना किया है, अब सुलह भी कर लिया तो ये शादी नहीं कर रहा। इसके पहले जब उसने जना किया था तो उन लोगों ने पर्चा करवा दिया। तो ये वो अली रज़ा जो है मरने वाला, वो जेल चला गया। जब जेल चला गया कि 5-6 महीने के बाद इनकी सुलह होगी। जब सुलह होगी तो उन्होंने कहा कि भी मैं बाहर आके शादी करूँगा। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ? नहीं कत्ल का तो मैनू नहीं दसिया उन्होंने। उन्हें कहने बुलाने ना डराने धमकाने शायद ये मन जाए। मैं भी हूँ एक भी भनेवा तेन मैं की कवां। सरैया ने कहा फिर मैं बुलानी हाँ। उन्हें बुलाया इनू पार्क च, घर नहीं सी आंदा। पार्क च बूहे दे नाल ही पार्क है। उन्हें पार्क च बुलाया भी इधर आ तेरे नाल कोई गल करनी। उन्हें कहा चंगा मैं आ जाना। आवाज़ ओपन ही सी, मैं असी सुनन डे। ਉਹ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾ ਜੋ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਰਈਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਭਨੇਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੁਸ਼ਰਾ ਗਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮਗਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੈਯਬ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? 3 ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਗਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੈਯਬ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਯਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੈਯਬ ਕੌਣ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਨੇਵਾ ਸੀ, ਆਦਾ ਭਤਰੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੈਲ ਮੇਰੀ ਪਲਾਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਵੇਚ ਸਕਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਲ ਤੇ ਛੱਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਬੋਤਲ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੋਤਲ। ਅੱਛਾ ਬੋਤਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਲਾਲਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਰਈਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ। ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਰਗਪੁਰ ਨੂੰ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਵੇਲੀ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੈਯਬ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਭਣੇਵਾ ਥੋੜਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਤੇ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਗਾ ਨਿਕਾਹ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦੇ, ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 4 5 ਹੋਰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜੂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੈਯਬ ਕੋਲ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਡਾ ਕੋ ਚਾਕੂ ਛੱਲੇ ਦੇ। सानू जरा पता लगा ना जी जी व्यूज़, हमें जो सीआईए के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने और जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने बताया है कि इससे बकायदा पैसे लिए उनसे। मैं पैसे बताता हूँ। और पैसे क्या थे, क्यों लिए, वो यही वजह थी कि ये साथ होकर इसने कत्ल करना था। मामला मजीद जो है वो इससे भी पूछते हैं कि इसका क्या राय, इसकी राय बनती है। ये कत्ल का वो कत्ल के दिए हो, वैसे दिए हो, पैसे तो ले कितने लिए दिए उन्होंने? वो पैसे तो वो दे के गए मुझे, जब उतारा है कि उन्होंने कहा यार रख ला चिल्लो यार, कितने? 2 लाख रुपए दिता। जहाँ वहाँ बताओ उस वक्त जब मारे थे तब क्या सिचुएशन? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਯਬ ਚਾਕੂ ਫੇਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਰਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਸਰਈਆ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਲਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ये सुरैया तो नाल नहीं सी है? ਨਹੀਂ ਸਰਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਸੀ ਨਾਲ। इट्टा किन्ने मारी है? ਇੱਟਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਲਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੈ। फायर किन्ने कीता? ਫੈਰ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਫੈਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਈਅਬ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਛੁਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਤਿਆ ਉਹਨੂੰ। लेकिन तू शामिल था ना? ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ सारे मामला ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ कत्ल दे मामला ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪੇ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸ਼ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੱਖ ਲੈ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈ 4 ਦਿਨ ਜਰਾ ਫਿਰ ਟੋਰ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। फड़िया कदों क्यों? ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਸਾਂ। ਮੈਂ शक किस तरह पैदा रहते? ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਛੁ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਦਾਮ ਹੈ ਨਾਲ, ਬਾਟਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਦਾਮ ਹੈ ਸਰੀਏ ਦਾ। ਉਹ ਛਤਰੀ ਚੌਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਏ ਦਾ ਗਦਾਮ ਹੈ, ਸਰੀਆ ਲੈਂਦੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ, ਤਲਕ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਸੰਕਲ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ? ਮਕਤੂਲ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛਡਾਇਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮਰਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ, ਦਿੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है डीएसपी सीआईए मियां अंजम तुकीर साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले, जिसमें एक 28 साल नौजवान पहले तो अगवा होता है और उसके बाद फिर उसका कत्ल जो है वो सामने आता है, जिसको कत्ल कर दिया गया है। क्या मामला है, क्यों इस लड़के को अगवा किया गया और किस तरीके से सीआईए ने इस केस को सॉर्ट आउट किया और मुलजिम के क्या इंकशाफात हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे डीएसपी साहब से। जी अंजुम साहब बताइएगा ये मामला था क्या और किस तरीके से पुलिस स्पेशली सीआईए पहुंची है इन लोगों तक? इसमें असल मामला ये था कि अली अदनान की कज़न्स हैं बुशरा और सुरैया, उनकी एक बेटी है जिससे तल्लक़ात के शुबे में वो दोनों औरतें इसको बुलवाती हैं। उनके साथ 3 बंदे होते हैं, वो इनको बुलवा के और गन पॉइंट पे गाड़ी में बिठाती हैं, पहले अपने घर बुलवाती हैं। घर के पास एक पार्क है, वो घर में नहीं आता, उस पार्क से ये गाड़ी में बिठा के
और उसको ले जाती हैं। अगवा औरतें करती हैं ये दोनों? जी नहीं, औरतों के साथ 3 बंदे होते हैं। 3 बंदे और भी होते हैं। और इन औरतों को उस लड़की से क्या ताल्लुक है जी? इन औरतों का अली रज़ा जो कत्ल होने वाला लड़का है वो मामू का बेटा है, और इनकी अपनी एक बेटी है जिससे उनको शुबा होता है कि इससे इसके नाजायज़ तल्लुकात हैं। ये उसको बुलवा के 2-3 बंदे साथ मिला के गाड़ी में बिठाते हैं, उसको नशावर चीज़ पिलाते हैं 7 अप की बोतल में, वो बेहोश सा हो जाता है। फिर इन्होंने उसको गाड़ी में बिठा के और शरकपुर के इलाके में ले गई। वहाँ खेतों में ले जा के खाली सा डेरा था जहाँ पे कोई नहीं होता था, सुनसान जगह पे ले जा के उसका गला काटा और उसके ऊपर मज़ीद तसल्ली के लिए उसके सर में एक फ़ायर मारा कि तसल्ली हो जाए ये मर गया। जो हमें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें पता चली हैं वो ये बताया गया कि ये कत्ल में शामिल था और इसने छुरी भी फेरी है, ये भी कहा गया है। हाँ जी, मैं शामिल था बस। तो ये सारा ये जो इसने मामला है इसने सारा बता दिया कि मामला ये था बकौल इसके कि पहले से उनका इशू चल रहा था, आपस में रिश्तेदार थे वो लोग। पर्चे भी हुए थे ना, उनके पर्चे भी हुए थे। अच्छा, उन्होंने आपस तो उसने पहले जो मकतूल है हाँ जी, उसके बारे में जो तुम बता रहे हो कि पहले उसने क्या ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की थी ना। मामू इसका लेके आया इसे घर से पीछे गांव से। लड़की के अपने माँ बाप की तरह? लड़की का बाप तो लेके आया अपने भांजे को गांव से। मेरे चलो मेरा सका भांजा। बाप कौन है लड़की का? बाप फौत हो गया वो। अच्छा, मियाँ परवेज। अच्छा, वो लेके आया है कि चल मेरे पास रहेगा, कारोबार संभालेगा, चल कुछ बन जाएगा। लेकिन मियाँ परवेज अस्पताल सी जिद एक घर आया कुछ और चीज़ लैन आया जब अल्लाह आलम की लैन आया उदो ये बयान से कि मैनू शैतान हाज़र हो गया मेरे पहले फड़िया गया सी मुंडा? हाँ, फड़िया गया सी। सज़ा भी हुई थी? सज़ा यानी कि सज़ा नहीं सी हुई। 6 महीने बाद इन्होंने सुलह कर ली। 5-6 महीने बाद भी चलो उन्हें कहा भी मैं जिमें तुम आखोगे मैं करांगा, बाहर आके मुकर गया। सुलह कर ली भी, उसी वजह ना फिर कत्ल हुआ? हाँ, उसी वजह ना कत्ल है। बर नाज़रीन, जो भी मामलात हैं गलत काम का गलत अंजाम है जी, और अपनों ने ही अपनों के साथ बुरा किया। अगर उसने किया मकतूल ने तो भी गलत था, उसके बाद जब उसके साथ हुआ वो भी गलत है। हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए, और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है इस केस के तफ्तीशी अफसर आतिफ साहब, उनसे आप बात करेंगे कि असल मामला था क्या। हमें पता चला कि आपस में रिश्तेदार भी थे, यानी कि कत्ल करवाने वाली औरतें और ये मकतूल आपस में इनकी रिश्तेदारी भी थी। क्या मामला था, बात कहाँ बिगड़ी और किस तरीके से प्लान किया गया, इसी वाले से हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जी। आतिफ साहब बताइएगा, मामला था क्या ये सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अली रज़ा मकबूल है, ये सुरैया और बुशरा नामी 2 बहनें हैं जो 2 भाइयों गुलाम रसूल और परवेज़ के साथ ब्याही हुई हैं। उनका ये मामू का बेटा है और ये पाकपतन के रहायशी हैं। वहाँ से ये लाहौर शिफ्ट होता है 4-5 साल पहले, और उनके घर में रहना शुरू कर देता है ग्रीन टाउन के इलाके में। साथ ही उनके साथ सरिये का कारोबार भी करता है। इसी दौरान इसकी जो बुशरा नामी ख़ातून है उसकी बेटी के साथ कुछ मामलात हो जाते हैं, और वो बात थाना ग्रीन टाउन में मुकदमे तक जा पहुंचती है। उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है जिसमें वो जेल चला जाता है लड़का। और उसमें उनकी वो क्या कोई और लड़की के साथ जी जना का केस, जना बिलजबर करता है ये जी। तो उसमें इनकी आपस में फिर सुलह हो जाती है कुछ शराइत पे। जब वो जेल से बाहर आ जाता है तो इनकी वो शराइत पूरी नहीं हो सकती, उस पे इनका आपस में कुछ मामलात थे, और उस लड़की के साथ इनकी शादी का वादा था। फिर इसने उसकी जो दूसरी बहन है सुरैया, उसकी बेटी का रिश्ता मांगा, तो इनका आपस में इस किस्म के इख्तलाफात थे फैमिली में। अच्छा, जो दूसरी पार्टी है, जो औरतें थीं, वो ये चाहती थी कि ये जो लड़का है ये शादी कर ले बेटी से? जी, ये उसी लड़की के साथ शादी तो ये नहीं मान रहा था? ये नहीं मान रहा था इस बात पे, तो इससे इनके इख्तलाफात बढ़ते गए। तो जो उसका बुशरा का बहनोई है गुलाम रसूल, जो मरकज़ी मुलज़िम है हमारा, उसने फिर ये प्लान किया है इसको रास्ते से हटाने का। तो उसने अपने साथ एक तैयब नामी लड़का मिलाया जिसके साथ उसने ये वादा किया कि मैं आपको बजरिया डंकी इटली ले जाऊंगा। तो उसने आगे ये अली अब्बास को मिलाया जिसको उन्होंने पैसे दिए, तकरीबन 3 लाख के करीब रकम दी इसको। तो इन्होंने फिर 9 तारीख को सुरैया नामी ख़ातून के ज़रिए उसको बुलवाया अपनी दुकान से, और उसको गन पॉइंट पे अपनी गाड़ी में डाला इन चारों
पांचों लोगों ने, लेकिन जो सुरैया है वो वापस घर चली जाती है वहाँ से। तो ये 4 लोग, बुशरा, गुलाम रसूल, तैयब और अली अब्बास, ये उसको अपनी गाड़ी में डालते हैं और ले जाते हैं शेखुपुरा वाली साइड पे। रास्ते में उसको नशावर मशरूब जो है वो पिलाते हैं, जिससे वो नीम पे होश हो जाता है। और शरकपुर के इलाके में एक वीरान डेरा है तिरडे वाली के पास, वहाँ पे रात कोई 8-9 बजे के करीब लेके जाके उसको पहले छुरी से ज़िबा करते हैं, उसके गले पे छुरी फेरते हैं और फिर वो गुलाम रसूल उसको फायर मार देता है। गुलाम रसूल जो मरकजी मुल्ज़िम है, ये जी, जिसने पैसे लिए थे? नहीं, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है। गुलाम रसूल उसका क्या लगता था जिसने उसको मारा? गुलाम रसूल इसका मकतूल का उसकी फुफ्फी की बेटी का खामद है, बहनोई कह लें आप, कज़न का खामद। ठीक है, तो ये जो औरतें गिरफ्तार हुई थी इस सारे मामले में, उन्होंने क्या इंकशाफात किए, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने यही बयान दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुरैया नामी खातून जो है उसने फ़ोन करके उसको बुलवाया था कि जी हमारी बात सुन लो। तो वो आ गया उसके एतमाद पे, तो वहाँ पे आगे ये 4 लोग इकट्ठे थे। तो प्लानिंग इनकी पहले से थी। इन्होंने उसको वहाँ से गन पॉइंट पे गाड़ी में डाल लिया और फिर शेखुपुरा की तरफ ले गए। और इन्होंने मारना ही मारना था उसे? जी, इरादतन मारा इन्होंने। वो उन्होंने इकबाली जुर्म कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया, औरत ने भी और इसने भी। तो ये जो मुल्ज़िम में भी है आपके पास, ये इसने पैसे लेके कत्ल किया? जी। ठीक, और बाकी जो मुल्ज़िमान वो फरार हैं अभी, 2 मेन जो मुल्ज़िमान हैं, और कुछ लोग हैं जो प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं, तो उनकी तलाश जारी है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। अच्छा, कत्ल करने के बाद फिर इन्होंने क्या किया? ये जब इन्हें यकीन हो गया कि उसकी डेथ हो गई है, तो इन्होंने फिर अपने कुछ कपड़ों में, और बुशरा नामी खातून का अबाया था, उसमें लाश को लपेटा वहाँ से और उसको डिग्गी में डाला, गाड़ी की डिग्गी में, और डिग्गी में डाल के वहाँ से तकरीबन को 2-1 किलोमीटर दूर एक खेत थे, वहाँ पे इन्होंने लाश को फेंक दिया और ये वापस अपने अपने घरों को आ गए। और वहाँ पे अगले दिन एक किसान जो मुकामी काश्तकार था, उसने वो लाश देखी और उसने मुकामी पुलिस को इतला दी बजरिया 15। तो लोकल पुलिस ने वहाँ से वो लाश रिकवर की, और जिसकी बाद में शनाख्त अली रज़ा के तौर पर हो गई। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई और मकतूल के ये रिलेटिव हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे इस मामले के हवाले से कि जो बातें सामने आ रही हैं उनमें क्या मामलात थे, क्योंकि अपने ही अपनों की जान की दुश्मन बन गई, आपस में रिलेटिव है सारे। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है इस सारे वाक़े पे, लेकिन ये इशू स्टार्ट कैसे हुआ? आप सब आपस में रिलेटिव्स हैं, क्या रिश्ते हैं? मारने वाले कौन है और जो मरने वाला है वो कौन है? ये जो मारने वाले हैं वो फुफ्फो की बेटियां हैं और उनके हस्बैंड्स हैं। तो ये वाक़या इस तरह हुआ कि कुछ अर्सा पहले जो है ना, रिश्ते की बात चल रही थी इसके फुफ्फो की बेटी के साथ। तो जो अली रज़ा था वो राज़ी नहीं था, तो मतलब वो क्लैश हुआ, रिश्ता ख़त्म हो गया। उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि इन्होंने हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती की है, तो उन्होंने FIR करवा दी 376 की। FIR में जब मेडिकल आया उस वक़्त वो नेगेटिव आया, तो अली रज़ा जो है बेगुनाह हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम बदला लेंगे। हम उनके घर गए, हमने कहा मिन्नत जो हमें मुल्ज़िम ने कहा कि मेरा बनता है, जो चीज़ें सामने, जो जिसने कत्ल किया है साथ होके, वो ये बता रहा है कि बकौल उसके, ताकि बात क्लियर हो जाए, वो कह रहा है जी कि उसके साथ मुबैना तौर पर जो मकतूल है उसने पहले गलत हरकत की थी, उसके बाद फिर FIR हुई, फिर वो बंदा पकड़ा गया, फिर 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन होती रही, फिर इसने को आपस में सेटलमेंट हुई थी कि मैं शादी कर लूँगा उस लड़की से, वो प्लॉट का भी मामला था। तो फिर ये उन्होंने फिर उसको माफ़ किया, तो ले आए बाहर। जब बाहर आके उसने इनकार किया तो उस बिना पर उसने फिर ये सारा बहरहाल फिर भी कत्ल कर रहा, तो फिर भी नहीं बनता। हाँ सर, ये वर्बली है ना, तो हमारे पास तो प्रूफ है ना मेडिकल का। अच्छा, गवर्नमेंट का जो मेडिकल है वो मेडिकल आया हुआ है, ठीक है, तो वो मेडिकल में बेगुनाह है, नेगेटिव आया। यानी इन्होंने कुछ जो है सेटलमेंट का कोई पेपर शेपर नहीं इन्होंने माफ नहीं किया था कुछ भी, लेकिन वो सेटलमेंट हुई थी, लेकिन मेडिकल आया था 1 वीक, आफ्टर 1 वीक पहले सेटलमेंट हुई थी। पहले हुई है, हाँ जी, मेडिकल बाद में आया। बाद में आया। उस वक्त इनको हमने 1.5 करोड़ रुपया दिया था। पहले सेटलमेंट होगी, माफी का नामा हो गया, माफीनामा हो गया, उससे 2-3 दिन बाद मेडिकल भी आ गया। सेटलमेंट के लिए बकौल आपके कितना दिया आपने? 1.5 करोड़ रुपया दिया था, घर के फाइल और गाड़ी थी सिटी, उसकी कॉपी दी थी। लेकिन जब वो मेडिकल नेगेटिव आया, जिस 3rd पर्सन के पास रखवाई गई थी, क्योंकि इसी बात पे सेटलमेंट हुई थी कि अगर ये गुनाहगार साबित हो तो गाड़ी की फ़ाइल और ये घर की फ़ाइल आप ना देना, इनको दे देना। अगर बंदा ही हमारा बेगुनाह हो तो फिर आप जो है क्या कहते हैं
ये हमें दे देना। कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला, ना रिश्ता किया ना। हाँ कुछ भी नहीं, कॉल जब नेगेटिव आ गया मेडिकल। उसके बाद इन्होंने जो है उसको वर्कलाना शुरू कर दिया, तो कि रिश्ता ले लो ये है वो है, इसने कहा कि नहीं। उसके बाद क्लैशेस हो गए अच्छे खासे, बिज़नेस डील चलती रहती थी इनके बेटों के साथ, क्योंकि इनका बिज़नेस काफ़ी लो लेवल का था। अली का माशाल्लाह अच्छा बिज़नेस था, वो इनको क्या सरिया काम वगैरह था अली का? सरिया का काम था। अच्छा, अभी भी बुशरा बीबी और इनसे पैसे लेने थे उसने, 7 लाख सुरैया के राउंड से लेना था और बुशरा से भी 2-3 लाख लेना था। तो 2 दिन पहले इन्होंने कॉल की है कि आओ 2 लाख या 3 लाख हमारे पास हो गया, वो ले जाओ, बाकी हम बाद में दे देंगे। तो इसने कहा चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो ये घर उनके नहीं गया, फिर भी प्लॉट में गया अकॉर्डिंग टू CIA इन्वेस्टिगेशन। प्लॉट में उन्होंने किडनैप किया उसको। तो जब उधर से लेके गए शेखुपुरा, तो वहाँ उसका मर्डर कर दिया उन्होंने। लेकिन ये दरमियान में हमें पता चला है 25 दिन बाद, क्योंकि डे फर्स्ट हमने ग्रीन टाउन पुलिस को CDR खुद प्रोवाइड की। CIA में आने की ज़रूरत क्यों पेश आई आप लोगों को? यही बता रहा हूँ ना, CDR और जो वीडियो स्ट्रीट की उनको देंगे हमने, ये लड़का ये इस घर में जा रहा है, घर के आगे खड़ा हुआ है, तो ये आप इनसे इन्वेस्टिगेशन करें। उससे आगे कैमरे की रेंज नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं ये बेगुनाह है, ये है वो है, इस तरह का, मतलब जो भी पंजाब पुलिस का होता है सीन। नहीं, अब हर कोई तो नहीं करता, पंजाब पुलिस अच्छा काम भी करती है, जो कुछ होते नहीं अच्छा हैं करते जो हमारे वो- साथ हुआ हाँ, ठीक है, है। जिन्होंने हमारे साथ किया हम उनकी ठीक, ठीक, कारकर्दगी ठीक। बता रहे हैं। हाँ। उसके बाद 20-25 दिन उन्होंने इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा हमें, तो कोई मतलब पेशरफ्त नहीं हुई। तो उसके बाद जो है हम इधर CIA में आए। यहाँ CIA भी पंजाब पुलिस का ही हिस्सा है, लेकिन एक हिस्सा ही है, डिफरेंट लेकिन डिपार्टमेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट ये डिपार्टमेंट भी वही है, उसी डिपार्टमेंट से है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा अच्छा उन्होंने आपको जल्दी अच्छा काम कर दिया। इन्होंने तकरीबन 24 से 48 घंटों में जो है ये मतलब कि बता दिया हमें कि ये हुआ इशू, मर्डर कर दिया गया आपके भाई का। तो उसके बाद जो है प्रोसीडिंग चल रही है आगे। लेकिन पंजाब पुलिस मामला ने कुछ भी हैं जी। जो इल्ज़ामात मकतूल पर मुबैना तौर पर जो उसके बारे में बताया गया है, जो मुलज़िम ने लगाया है, जो मुलज़मान लगा रहे हैं, वो भी इनसे हमने क्लियर कर लिए हैं, लेकिन उनका अपना स्टांस है। जिन्होंने कत्ल किया है, बहरहाल फिर भी कोई भी वजह हो, किसी की जान लेना किसी तौर पर भी ये दुरुस्त नहीं है। और इन्होंने अपनी रीज़न बता दी। आपस में सब रिश्तेदार हैं, लेकिन रिश्ते का तनाज़ा था या कोई और वजह थी, मामला कुछ भी था, क्लैश हुआ जो मकतूल है उसका और जो कत्ल करने वाले हैं मुबैना तौर पर उनकी बेटी की वजह से इशू बना, और यहाँ तक बात पहुँची कि उसको ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया गया। बहरहाल CIA ने ये बहुत जल्दी इस केस को सॉर्ट आउट कर लिया है, और मज़ीद एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश यही होगी कि जो मुलज़मान हैं उनको कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाए।